Hi everyone, welcome back to my channel. In this video of mine, I am going to share my notes of CUET PG examination of CUQP 17. So CUQP 17 is a examination code for media and journalism exam of CUET PG. I had already made a video on how I cracked CUET PG examination and got admission in IIMC Delhi. So watching that video, some students texted me on Twitter and commented on my YouTube channel that if I have some of the notes of for this exam. So I have a few notes of mine which are I'm sorry, but they are very rough, but they might be helpful to you those who are appearing for 2025. So they are my own handwritten notes, and I had made them watching a channel on YouTube which is Learn Mass Communication and studying the mass media book of NCERT. And yes, some people raised the query watching my video, like which NCERT I was talking about. So the NCERT is class 12th NCERT of Mass Media and Society. And second one was people were asking me for the reference book that I read. So I got the reference book. So this is the reference book which is how to crack NTA CUT PG Mass Communication and Journalism Entrance Examination 2024 for IIMC. So those people who want to appear for this exam can buy this book. In this book, you will get a plenty of things like the first thing is English language and comprehension, and mathematical quantitative ability and analytical ability. So you can skip this part because this is not in our syllabus now. So you can go for the general awareness, in which you will get insights of the general knowledge about the World Heritage Sites and the UN headquarters and WHO and all. You will get about that. Next thing is information communication technologies and its application in media industry. This is very important. So question is being asked from this section as well. Another one is artificial intelligence and chat GPT. So this is a very hot topic these days. So they might ask questions from this as well. Mass media and societies, and the other one is study material on media and related to general awareness, social media, and media related important facts at a glance. So the last section, so facts at a glance, it's really important because the question is being asked from this section as well. I will recommend you to buy this book and buy the latest section, because from if you will buy the latest section, you will get the current affairs precisely. So this book might be help you out, and in this video I'm going to share my own notes that I had made that I found useful for myself, and they proved so. So I wish you good luck that these notes might help you out as well. See, like here you will get about international organizations, so you can refer from here as well. And if you and here you will get important awards and honors. So in this section, like if you find something which is new to you, you can make value addition as well. So I did this. So here you'll get all the awards and achievements and the latest awards which get. So this was also asked in our examination, and this can also be asked in your exam as well. So like this. So before I start, I am already apologizing for my handwriting. I had really made it very in a very rough way. So just bear with it. So here you will get all the acts, the history of media, and yes.
Like this was about the first movies that have something special thing, special characteristic in them. So it is about those movies, and these are one word for like the press commission, press freedom, and all. So it is development of press basically. So this is about a few theories of communication. तो दिस इज बीइंग आस्क्ड बाय द नेम कि वो पूछते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ये वन वर्ड्स में आ जाते हैं कि साइट का फुल फॉर्म क्या है, दूरदर्शन कब आया था, तो ऐसी चीजें वन वर्ड्स में आ सकती है। और ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे वाले एग्जाम में भी आया था कि जो वर्ल्ड की जो प्रेस है वो कौन सी है, और ये मतलब सबसे पहले कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई थी, और किस जगह की कौन सी है। तो ये पूछ लिया जाता है, न्यूज एजेंसी कौन सी कहाँ पे है, और इंडिया में कौन सी है। तो ये हमारे में भी आया था, और ये डेफिनेटली आ सकता है। तो वो ये साउंड डिवाइसेस के बारे में है, जो आपको पढ़ाया जाएगा आगे जाके, बट ये ब्रीफ में थोड़ा बहुत है। ये थोड़ा न्यूज़पेपर की उससे है, मतलब साइज क्या होती है। तो और पूछ लेते हैं कि इसकी सीरीज पूछ सकते हैं कि कौन सा पेपर कब आया था। तो ये हमारे एग्जाम में भी आया था कि हमें सीरीज सेट करनी थी कि कौन सा पेपर पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एडिटर्स भी हैं कि किसने कौन सा पेपर कब निकाला था। ये रेडियो के बारे में, उनकी टैगलाइन कौन सी है, उनके ओनर कौन है, तो ये उनके बारे में है। तो अगेन टेलीविजन देयर कि टेलीविजन में कब क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं, साइट कब आया, दूरदर्शन कब आया है, तो इसके बारे में है ये। तो ये कुछ थ्योरीज है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, स्पाइरल ऑफ साइलेंस। तो मैंने जैसे बताया कि नाम मैच करने के लिए दे सकते हैं, हमें भी शायद आया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है नॉर्मेटिव। तो आप ये थोड़ा डीप में पढ़ के जा सकते हैं कि इन थ्योरीज में क्या मतलब है इनका। तो आई थिंक इजी रहेगा आपके लिए। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेंबर्स कौन कौन है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन से प्रेस काउंसिल सेटअप हुआ था। कौन सा प्रेस कमीशन था वो? तो कुछ वन वर्ड के ही हैं, मतलब तो ये कमिटीज हैं। और कौन सी कमेटी ने क्या क्या किया था इसके बारे में, और इनके चेयरमैन कौन कौन थे। तो ये आप रेफर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मॉडल्स है ये। शैनन वीवर मॉडल इट्स इम्पोर्टेंट। नॉइज एलिमेंट आता है तो ये जो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको मुझे लगा कि वन वर्ड में, मतलब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे नाम है, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज है जिनसे ये लोग रिलेटेड हैं। तो काफी थोड़ा रफली है, बट आई होप समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइव वॉर कौन सी थी? इराक वाली वॉर है। तो दिस इज अबाउट येलो जर्नलिज्म। कौन रिलेटेड है इससे? जैज जर्नलिज्म क्या होता है? पेनी प्रेस। तो ये अलग अलग जर्नलिज्म है। ब्लू जर्नलिज्म, गॉन्जो जर्नलिज्म, लो कल्चर। इसके बारे में ब्रीफली पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। पैरेलल सिनेमा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जैसे सत्यजीत रे है, मृणाल सेन है, उन सबकी मूवीज पता होनी चाहिए कि कौन सी मूवी उन लोगों ने दी है। तो ये पूछा जाता है, और मैच द फॉलोइंग में भी पूछा था। तो कुछ कुछ मैंने लिखी भी है, जैसे बिमल रॉय की लिखी है। तो ये मैंने मूवीज की एक लिस्ट बनाई थी, तो जिसमें इम्पोर्टेंट मूवीज थी हर डायरेक्टर की। तो सत्यजीत रे की सबसे ऊपर है, उन्होंने ये दी थी। और कुछ मूवीज जो थी सत्यजीत रे ने रविंद्रनाथ टैगोर की बुक से इंस्पायर होकर दी थी, मतलब बनाई थी। तो वो जैसे चारुलता मूवी है, वो उनमें से एक है। और ये वाली मूवीज मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की बुक से इंस्पायर होकर बनाई गई है। और जैसे बाकी इन लोगों की डायरेक्टर्स हैं, वो उनकी मूवीज है। तो ये जरूर पूछा जाता है, और हमसे भी पूछा था मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। ये मैंने कुछ बुक्स एंड ऑथर्स लिखे थे।
कि जो उस टाइम पे करंट बुक्स आई थी, मुझे लगा कि उनके ऑथर्स पूछ लिया जाएंगे कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो ये उस टाइम की जो बुक थी, ये जीके टुडे की वेबसाइट है या फिर उनका एक शायद यूट्यूब चैनल भी है, उसमें वो लेटेस्ट बुक जो निकली है वो उनके बारे में बताते हैं, उनके ऑथर्स। तो वो आप इस साल का देख सकते हैं और पिछले साल का भी देख सकते हैं। काफी हैंडराइटिंग बहुत खराब लग रही है, स्टार्ट करने का आइडिया नहीं। और आगे जो नोट्स थे वो ज्यादा नहीं करंट अफेयर से रिलेटेड थे। करंट अफेयर्स आपके मतलब के नहीं है। सो कुछ अवार्ड्स थे कि कौन से अवार्ड दिए जाते हैं फील्ड में। हम्म, बाकी ये सारी चीजें तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जीके टुडे वेबसाइट या फिर जस्ट की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर तो है ही प्राइमरी सोर्स। इसमें भी मैंने डेवलपमेंट ऑफ प्रेस पूरा लिखा हुआ था वापस से। बड़े से कर सकते हैं। Again, these are a few books. तो ये भी कुछ वन वर्ड्स के हैं। ये कुछ वन वर्ड्स में मैंने लिखे थे, रॉबर्ट ब्राउन। और कुछ ये सिटीजन केन, ये वाली बुक पूछी थी, और D.W. ग्रिफिथ बर्थ ऑफ नेशन मूवी जो है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो कलर टीवी कब आया, जॉर्ज ऑरवेल की क्या थ्योरी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, मिंट का फुल फॉर्म है मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, टर्की। So that's it. That was all my notes for this exam. तो ये मैं बताना भूल थी, ये जो फर्स्ट पोस्ट मिंट वायन, मिंट का एक फुल फॉर्म भी होता है, मैक्सिको, इंडोनेशिया। और yeah, these were all my notes for this examination, and this is the last video of 2024, and कल से नया साल लग जाएगा, so happy new year to all who are watching my video, and I wish a very good luck to those who are going to appear for this exam in 2025. I wish you will sail through this examination very swiftly, and we would love to see you as our junior in 2025. So all the best, and I hope my notes would be helpful to you, and this video will be very helpful to you. And if you have still any query regarding this, you can ping me on Twitter, or you can comment on my YouTube channel as well. I will reply to you. So thank you so much for watching. Bye bye. Namaskar.